Good afternoon, friends. So let's start with climate change. So we'll see some of the climate change conferences that are there. First is UNFCCC. Name is United Nations Framework Convention on Climate Change, and it is an international treaty held in 1992 at a Rio Earth Summit. It was constituted in Rio de Janeiro, and the name of the conference was Environment and Development Conference at UN. Alternate name is UN Convention on Climate Change. Then enforcement date is 21 March 1994, supported by over 50 countries, and approximately 197 countries have ratified this. Now, what is Earth Hour? So it is a worldwide movement of worldwide fund for nature, and it is on the last Saturday of March. The use of electrical appliances is stopped for 1 hour. That is 8:30 p.m. to 9:30 p.m. And the objective is to bring awareness about climate change and need to save Earth. Now the next is UNFCCC meeting year 2015 Paris Agreement. So Paris Agreement had some determined targets that were limiting greenhouse gas emissions, average global temperature rise by 2 degrees Celsius, pre-industrial levels by the end of 21st century, if possible don't exceed 1.5 degrees Celsius, then $100 billion climate fund to be deposited by the year 2020. Enforcement date is 4th November 2016, currently signed by 195 countries. Then Green Climate Fund. Green Climate Fund, a fund within the framework of the UNFCCC. Its purpose is to assist developing countries in establishment, adaptation and mitigation processes to combat climate change, and it is administered by Green Climate Fund Board, established at United Nations Climate Change Conference, which is located in Cancun, Mexico in 2010. Then we see that Kyoto Protocol and other protocol treaties. So Kyoto Protocol, what is it? It is an international agreement. It is related to UNFCCC, and section 12 of it deals with Clean Development Mechanism, CDM. Its target is reducing the emission of the greenhouse gases. It was adopted on 11 December 1997, the third summit of UNFCCC. Then applicable date is 16 February 2005. And what is the special? It to bring the emission of greenhouse gases to the level of year 1990, and it is a binding agreement. अब हम देखते हैं कार्बन टैक्स क्या है. सो कार्बन टैक्स ऑन कार्बन डाइऑक्साइड एमिटिंग सोर्सेस, ये एक तरीके का पॉल्यूशन टैक्स है, और पहला प्रपोजल 1990 में किया गया था बाय फिनलैंड. अदर कंट्रीज़ जहाँ पे कार्बन टैक्स है, तो हम देखते हैं ये नॉर्डिक कंट्रीज़ है मोस्टली, स्वीडन, फिनलैंड, नीदरलैंड, नॉर्वे. ओके, नाउ कमिंग टू कार्टेजेना प्रोटोकॉल. ओके, so we saw Cartagena was passed in 2000 and Nagoya was passed in 2010. So Cartagena का हम देखते हैं सबसे पहले इसके it is a supplementary protocol of biodiversity convention. Then its commitment is protection of biodiversity. It was drafted or adopted in 2000, entered into force in 2003. इंडिया ने भी 2003 में इसको रेटिफाई किया था थ्रू इट्स BTA, बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी एक्ट. देन क्लाइमेट चेंज में हम देखते हैं इंडिया का क्या एक्शन प्लान है. तो 2008 में इंडिया ने 8 सबमिशन लाए थे, किसके तहत? नेशनल एक्शन प्लान फॉर क्लाइमेट चेंज, NAPCC. सो इसमें क्या किसके रिलेटेड मिशन था? सोलर मिशन था, देन मिशन ऑन इन्हांस एनर्जी एफिशिएंसी, मिशन ऑन सस्टेनेबल हैबिटेट, नेशनल वाटर मिशन, then mission for sustaining the Himalayan ecosystem, mission for a green India, mission for sustainable agriculture, mission on strategic knowledge for climate change. अब हम देखते हैं ओजोन लेयर डिप्लीशन. ओजोन लेयर डिप्लीशन क्या है? सो ओजोन जनरेशन कहाँ पे होगा? स्ट्रेटोस्फीयर में नेचुरली होगा बाय UV रेडिएशन. और ये देखिए 2 स्टेजेस में ओजोन जनरेशन होती है. फर्स्ट स्टेज में क्या होगा? सनलाइट जो है ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके 2 ऑक्सीजन के फ्री रेडिकल्स बनाएगी, और ये जो फ्री रेडिकल बनेगा ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके ओजोन बनाएगा. ओके, तो इस रिएक्शन की वजह से ओजोन लेयर डिप्लीशन तेज़ी से होते जा रहा है. नाउ इन द ईयर 1985 ब्रिटिश टीम जो थी उसने अंटार्कटिका जाके टोटल ओजोन मैपिंग की बाय यूजिंग स्पेक्ट्रोमीटर, और यहाँ पे उन्होंने डिस्कवर किया कि देयर इज़ अ होल इन आवर ओजोन. अब हम देखते हैं कि ओजोन लेयर. ओके,
ओजोन लेयर की रेगुलेशन बाय नाइट्रस ऑक्साइड नेचुरली स्ट्रेटोस्फीयर एक्शन preventing dangerous UV rays from hitting Earth's surface and expansion 10% troposphere में 90% stratosphere में. Where is it located? Mainly in the lower layer of the stratosphere, located at an altitude of about 10 to 50 km from the Earth. The highest concentration in the form of a layer between 15 and 30 km. Layer thickness changes according to season, maximum in spring, minimum in rainy season, and it is measured in Dobson unit. Okay, now ozone gases that are there in the lower atmosphere are hazardous pollutants. See, ozone, when it is present in the stratosphere, it is good, but when it is present in lower atmosphere, it is a hazardous pollutant. So upper atmosphere protecting life on earth from sun's ultraviolet. Okay, that's what I told right now. अब हम दो facts देखेंगे इससे related. Gas filled in refrigerator are commonly marketed as refrigerants. कौन से ब्रांड के तहत? Mefron. Ammonia is used as refrigerant in large plants. अब हम देखते हैं CFCs के बारे में. क्लोरोफ्लोरोकार्बन. क्लोरोफ्लोरोकार्बन जो है वो रिस्पॉन्सिबल है किसके लिए? ओजोन होल के लिए. एंड मैन मेड कंपाउंड्स जो है फ्लोरीन और कार्बन के, उनकी वजह से और बढ़ते जा रहा है, ग्रीन हाउस गैसेस की वजह से भी. देन जब ब्रेक डाउन होता है ओजोन का इनटू ऑक्सीजन, तो ओजोन लेयर डिप्लीट करती है. एंड प्रॉपर्टीज़ क्या है इनकी? ये कलरलेस, ऑर्डरलेस होते हैं और इजीली कन्वर्टेबल इनटू लिक्विड. अब हम देखते हैं CFCs क्या है. हाईली स्टेबल कंपाउंड है, कैन एग्जिस्ट इन एटमॉस्फेयर फॉर अबाउट 55 to 140 years. कैन यू इमेजिन? Gaseous and liquid substances use a cooling agent in refrigerators and air conditioning equipments. They are a group of chemicals. अब हम देखते हैं preservation of ozone layer. So it has effect of UVB radiation. अगर UVB radiation हम तक पहुंचा, उसकी वजह से क्या क्या नुकसान हो सकता है? जीन म्यूटेशन होगा, ग्लूकोमा, स्किन कैंसर, inhibition of plant growth, sunburn, weakening of immune system, damage to leaves, genetic defects, various things. और फॉरेस्ट एंड वाइल्ड एनिमल्स अभी हम अगला टॉपिक है. अभी हम ये कुछ फैक्ट्स रिलेटेड टू देख लेते हैं. रिस्पॉन्सिबल गैसेस फॉर ओजोन डिप्लीशन अभी हमने देखा. CFC हैलोजेंस, नाइट्रस ऑक्साइड, ट्राइक्लोरोइथाइलिन, हैलोन. इफेक्ट ऑफ ओजोन डिप्लीशन इज मोस्ट विजिबल ओवर द पोल्स. Most of the ozone hole has been formed over Antarctica. Ozone hole was recorded in the year 2005 over the Tibetan Plateau by G.W. Kent Moore. The Montreal Protocol, a protocol of Vienna Convention, is related to ozone layer conservation. Montreal Protocol came into force on 1st January 1989 and International Ozone Day is celebrated on 16 September. इफ़ेक्ट हमने देख लिया ओजोन लेयर का. अल्ट्रावायलेट रे के 3 टाइप्स हैं, A, B, C, और A और B कितने हार्मफुल है हमने अभी देखा इसको. अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है फॉरेस्ट एंड वाइल्ड एनिमल. सो फॉरेस्ट एंड वाइल्ड एनिमल में हम शुरू करते हैं ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट से. तो ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट जो है वो इज़ लोकेटेड नियरली द इक्वेटर एंड इसका एक्सपेंशन देखिए तो 23 पॉइंट, मतलब जैसे आपका ये अर्थ है तो ये 0 डिग्री हुआ, तो 23.5 नॉर्थ एंड 23.5 साउथ, इनके बीच का जो एरिया है ये ट्रॉपिकल रेनफॉल मेजरली यहीं पे पाए जाते हैं. और ये वर्ल्ड के लार्जेस्ट बायोम है. नियरली 8% ऑफ अर्थ सरफेस इन्होंने कवर कर रखा है और यहाँ पे ऑल ईयर राउंड बारिश होती है. फिर इक्वेटोरियल फॉरेस्ट जो है, इक्वेटर के सराउंडिंग जो फॉरेस्ट है उनको इक्वेटोरियल फॉरेस्ट बोलते हैं. तो इन्हीं ट्रॉपिकल रीजन में जहाँ की 200 सेंटीमीटर से ज़्यादा रेनफॉल होती है तो वहाँ पे इक्वेटोरियल फॉरेस्ट बनते हैं. और इनके मेजर वेजिटेशन जो होते हैं लॉन्ग एंड ब्रॉड लीव्स एवरग्रीन प्लांट्स पाए जाते हैं. दे कवर 80% ऑफ द वर्ल्ड बायोडाइवर्सिटी. ओके, एंड जैसे अमेजॉन रेन फॉरेस्ट है वो एक एग्जांपल है. दे आर मॉइस्ट फॉरेस्ट विथ ब्रॉड लीव्स लोकेटेड इन साउथ अमेरिका अमेजॉन बेसिन एंड दे आर ऑल्सो नोन एज द लंग्स ऑफ द अर्थ एंड इट प्रोड्यूसेस मोर देन 20% of the Earth's oxygen. फिर हम देखते हैं टेक्सास ट्री फाउंड इन हिमालयाज नेचुरली इज़ लिस्टेड इन रेड डेटा बुक. रेड डेटा बुक में हमने एंडेंजर्ड चीज़ों का नाम देखा था. अ ड्रग टेक्सोल विच इज़ इफेक्टिव इन कैंसर कहाँ से मिलता है? टेक्सास ट्री से. देन मैंग्रोव फॉरेस्ट दे ग्रो इन सलाइन वाटर्स इन कोस्टल इन ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल रीजन. सुंदरी ट्रीज फाउंड इन सुंदरबन डेल्टा.
एंड आइलैंड ऑफ गोवा विच इज़ फुल्ली प्रोटेक्टेड कच्छ वेजिटेशन एरिया, कुराओ आइलैंड। अब हम देखते हैं यहाँ पे बेनिफिट्स और यूजेस ऑफ फॉरेस्ट। ये बताने की ज़रूरत है नहीं कि फॉरेस्ट आर सो यूज़फुल फॉर अस, दे आर द फाउंडेशन ऑफ आवर बीइंग ऑन दिस प्लानट अर्थ। अगर फॉरेस्ट नहीं रहेंगे तो हमारा सर्वाइवल ही नहीं हो सकता। तो रिसोर्सेज जो देते हैं, रिजर्व रिसोर्सेज, स्टॉक रिसोर्सेज, रियल रिसोर्सेज, कल्चरल बेनिफिट्स है, प्रोडक्टिव एक्टिविटीज़ है, प्रोटेक्टिव एक्टिविटीज़ भी है, रेगुलेटरी एक्टिविटीज़ भी है। सो ये सब है। फिर हम डिफॉरेस्टेशन के कॉजेज़ इफ़ेक्ट देखते हैं। तो डिफॉरेस्टेशन का रीज़न क्या हो सकता है, बताइए क्यों पेड़ ख़त्म होते जा रहे हैं। फायर हो रही है, एक्सपेंशन हो रहा है हमारी कल्टिवेबल लैंड का, रोड्स डेवलप हो रही है, अर्बनाइजेशन, इंडस्ट्रियलाइजेशन, कमर्शियल यूज़ ऑफ वुडन प्लांट्स, एक्सेसिव ग्रेजिंग, इग्नोरिंग सस्टेनेबल डेवलपमेंट। इन सब वजहों से डिफॉरेस्टेशन बढ़ते ही जा रहा है। और डिफॉरेस्टेशन से होगा क्या, बारिश कम होगी, सूखा पड़ेगा हिमालयाज़ रीजन में भी, एक्सटेंट हो जाएंगी स्पीशीज़, उनका हैबिटेट ख़त्म हो चुका होगा, ग्लोबल वार्मिंग होगी, सॉइल इरोजन, डिग्रेडेशन ऑफ सॉइल, डेजर्टिफिकेशन, फ्लड, ड्रॉट, बायोडाइवर्सिटी लॉस एंड इफेक्ट ऑन रीजनल एंड ग्लोबल क्लाइमेट। सो हम देख रहे हैं कितना ड्रास्टिक इम्पैक्ट हो रहा है डिफॉरेस्टेशन से। अब हम फॉरेस्ट का अगर हम क्लासिफिकेशन करें तो ऑन द बेसिस कि वो कहाँ पे है, हम कर सकते हैं प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट, नेशनल फॉरेस्ट, विलेज फॉरेस्ट, ट्री लैंड। ओके, अब हम कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स यहाँ पे दिए हुए हैं। रिसोर्सेज दैट कैन बी यूज रिपीटेड बाई एंड डज नॉट रन आउट, रिन्यूएबल रिसोर्सेज बोलते हैं, जैसे कि सोलर, विंड, ये सब रिन्यूएबल रिसोर्सेज हुए। एंड इफ अ ब्रिज इज मेड फ्रॉम अ ट्री विदाउट कटिंग इट, देन दैट ब्रिज इज कॉल्ड लिविंग ब्रिज और नेचुरल ब्रिज। एल्यूमिनियम इज इको फ्रेंडली नेचर एंड रिन्यूएबल, इट हैज़ बिन कॉल्ड ग्रीन मेटल। अब हम सर्टेन लॉज एंड उस पर आएंगे जो इम्पोर्टेंट फॉरेस्ट पॉलिसीज़ हैं जो कि पास्ट में लागू हुई हैं, हम अब उनको पढ़ेंगे। सो लेट्स डू इट इन अनदर लेक्चर। ओके, टिल देन कीप स्टडिंग, थैंक यू वेरी मच।